Welcome friends, we are continuing with the chapter number 2 economics, utility analysis. As you have seen in the first video, we had talked about utility, what is utility, features of utility, types of utility, relationship between TU and MU. Now further in that chapter only, we are going to see law of DMU, law of diminishing marginal utility. It is a very important law. As you can see, in the coming chapters also we are going to see many laws. Law of DMU we are going to see here. Then we have law of demand, law of supply. So in this microeconomics section, these three laws are very important. First of all, this is law of diminishing marginal utility. So let us see what is this law all about. Introduction part. In every law you have to write in this way only, starting with introduction, statement of law, which you have here. Then you have the table, then you have the diagram, explanation of the diagram, and it is followed by exceptions and assumptions. So this is the perfect way to write a law. As you can see here in the introduction section, you have to write who has described this law, who has given this law, and when was it published. So you can see here we have this law was first proposed by Professor Gaussen, but was discussed in detail by Professor Alfred Marshall. Now remember this name, Professor Alfred Marshall. This name will follow you in this microeconomics section, and this man, Professor Alfred Marshall, is your hero for this microeconomics section, because every law basically he has written in his books of Principles of Economics, which was published in 1890. As you can see here, how old is it? It is almost 130 years old. So you can come to know Principles of Economics written by Professor Dr. Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. This particular paragraph, this thing by Dr. Alfred Marshall and Principles of Economics published in 1890, this particular line and paragraph you can use in all the laws, because all the laws have been published and given by Mr. Dr. Alfred Marshall. So you can write this statement in every law, that is law of DMU, which is here, law of demand coming in next chapter, law of demand and law of supply. Now coming to statement of law. Statement of law means what does the law say? So according to Professor Alfred Marshall, other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increase in stock, a thing, diminishes with every increase in the stock that he already has. So as you can see here, it is clearly written that whatever a consumer consumes and the stock which increases for his consumption, the DMU goes on diminishing. This we have seen particularly in the first video. We were talking about TU and MU, relationship between TU and MU. We have discussed it in the first video. Now we are coming to the point of law of DMU. So the statement of law says the same thing. As you go on consuming, the MU goes on diminishing. Now let us see the table and diagram. The table of this is, it says, see, it is the same diagram, it is the same table what we had seen in the relationship between TU and MU. Here you can clearly see units of X, total utility, marginal utility. There are three columns. But here in the law of DMU, here you can see only two columns, units of X and MU. There is no TU column. The middle column of TU has disappeared from here. As you can see, in the first we had three column, relationship between TU and MU, but in the law of DMU you have to write only the single table with only marginal utility. There is no TU here. The same table is used here, the same numerical numbers are used here, the same cardinal measurement is used here. Units of X, as we had seen in the first video, that for a person, for example, I had said you can use a person has been given 7 apples to eat. He has been usko 2 दिन से खाना नहीं दिया है, and he has been given 7 apples to eat. So what will be his marginal utility? It is the same numbers which we had discussed in TU and MU. Here you can also see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and just cancel the TU column. Just look at the marginal utility column. 10, 8, 6, 4, 2, 0, minus 2. The same digits are used here in the law of DMU also. Same way, the diagram also you can see here, the same MU curve which we had seen in the relationship between TU and MU is used here. Look at the MU curve, just look at the MU curve. Don't look at the TU curve. Just look at the MU curve and you can see the same numerical figure, the same thing, the same MU curve going downwards, sloping downwards from left to right. The same MU curve has been used here.
The same MU curve has been used here and the same relationship has been shown here between marginal utility and price, the units of X consumed. So now you can see the explanation of diagram. The same thing you can explain in your own words. Nothing, no need to mug up, no need to do it by heart. You have to just explain the diagram in your own words. You can say, you can see from the figure, MU at first it is 10 and it goes on diminishing as the units of consumption is increased. And at the 6th unit, the MU becomes 0, and after the consumption of 6th unit, at the 7th unit, the MU goes into the negative zone, which describes there is a dissatisfaction, disutility about the consumption. So this only things are given in this explanation. You can write your own explanation in your own words. Okay. So now, as I said, every law has been followed by assumptions and exceptions. Now what are assumptions? Okay. Assumptions are things which we assume. हम लोग कहते हैं ना, लाइफ में हम लोग बोलते हैं ना, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा नहीं होता तो वैसा होता. सो दीज आर ऑल एजम्पशंस जो कभी प्रैक्टिकल चीज़ें प्रैक्टिकली होते नहीं है, बट दे आर जस्ट ऑन द बुक, दे आर जस्ट इन द बुक, दे आर जस्ट थियोरेटिकल, नॉट प्रैक्टिकल. सो व्हाट आर द एजम्पशंस? लेट अस सी द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU. ये वो एजम्पशंस है जो ऐसा बोलते हैं कि अगर ये सही है तो ही लॉ ऑफ DMU सही साबित होगा, अगर ये है तो लॉ ऑफ DMU सही साबित होगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज रैशनलिटी. रैशनलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि द कंज्यूमर शुड बी अ रैशनल कंज्यूमर, ही शुड बी विथ अ स्टडी ब्रेन. कोई पागल आदमी को आप पागल आदमी के ऊपर आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो. जैसे मैंने बताया था, एक आम आदमी को हम लोग एक भूखा रखा है 2 दिन से और उसको 7 एप्पल्स खाने को दे रहे हैं. एक पागल आदमी को आप 7 क्या 70 दोगे तो भी वो खा लेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है उसके साथ क्या हो रहा है. सो अ रैशनल कंज्यूमर इज नीडेड फॉर दिस एग्जाम्पल सो दैट ही कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन. सेकेंडली, कार्डिनल मेजरमेंट. As we had discussed earlier also, there is no cardinal measurement possible for assuming a satisfaction. But for the sake of law, we have to assume there are cardinal measurement. So here, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity. That's why we have used cardinal numbers. Cardinal number means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What you see here? 10, 8, 6, 4, 2, 0, minus 2, whatever they are. These are cardinal numbers. They are used just to explain this diagram easily so that even a common man can understand. Third, homogeneity. Homogeneity means identical. All units of a commodity consumed are exactly homogeneous or identical in shape, color, size, taste, etc. etc. For example, जैसे हम लोग ने बात किया था एक्सपेरिमेंट में, हम लोग उसको एप्पल खाने को दे रहे हैं 7 एप्पल्स, तो ये सातों के 7 एप्पल सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, सेम कलर के होने चाहिए. पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. दैट्स वाई हम लोग इसको एजम्पशंस बोलते हैं, विच आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. बट यहाँ पे बोला गया है होमोजिनिटी. होमोजिनिटी का मतलब है वॉट एवर थिंग्स यू आर गिवन फॉर द एक्सपेरिमेंट शुड बी इक्वल, साइज, शेप, एवरीथिंग. फोर्थ, कंटिन्यूटी. आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिस इंसान के ऊपर, उसको कंटिन्यूस वो एक्सपेरिमेंट करना है. वो साथ के साथ चीज़ें हम लोग जो उसको खिला रहे हैं, इट शुड बी इन कंटिन्यूटी. नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सुबह एक एप्पल खिलाया, दोपहर को एक खिलाया, शाम को एक खिलाया, रात को एक खिलाया, वो तो खाते जाएगा ऐसे तो. लेकिन कहने का मतलब है फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट इट शुड हैव अ कंटिन्यूटी. फिफ्थ, रीजनेबिलिटी. रीजनेबिलिटी का मतलब है आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप जो चीज़ को ले रहे हो, दैट शुड बी रीजनेबल फॉर दैट पर्सन टू कंज्यूम. इट शुड बी नॉट बी टू बिग और नॉट टू स्मॉल. अगर एप्पल की जगह पे वाटरमेलन ले ले तो आपको हंसी आएगी ना, सही बात है. लेकिन वाटरमेलन अगर साथ उसको खाने देंगे तो वो तो क्या एक में ही उसका पेट भर जाएगा. सो कहने का मतलब है अगर आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो दैट कमोडिटीज शुड बी ऑफ रीजनेबल साइज. सिक्स्थ, कॉन्स्टेंसी. कॉन्स्टेंसी का मतलब है ऑल द अदर रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा शुड बी कॉन्स्टेंट. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट. यानी बाकी सारे पैरामीटर्स जो होते हैं वो सारे कांस्टेंट होने चाहिए, तो ही ये लॉ ऑफ DMU आपका सही साबित होगा. अगेन आई एम सेइंग ये सारे प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ये सारे एजम्पशंस दे आर ऑल थियोरेटिकल. सेवेंथ, डिविजिबिलिटी. Divisibility means commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantities. आप क्वांटिटीज़ में उसको खा सकते हो. ठीक है, इसकी जगह जैसे कि हम लोग ने बताया एप्पल्स को रखा है हम लोग ने एग्जाम्पल में. एप्पल की जगह मैंने जैसे बताया वाटरमेलन को भी नहीं रख सकते और ग्रेप्स को भी नहीं रख सकते बिकॉज ग्रेप्स आर टू स्मॉल. सो डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला इसमें काम करता है. सिंगल वांट. A given commodity can satisfy a single want of person.
द सिंगल वांट का मतलब होता है यहाँ पे उसका एक सिंगल वांट ही उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। वो कमोडिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मल्टीपल वांट्स उसके सेटिस्फाई हो जाए, नहीं तो फिर ये अपना डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा। So these are all assumptions. Again I am saying all these assumptions are not practical, they are just theoretical. They are just written so that the law can be made possible. Okay, but they are not practical in life. Now let us see what are the exceptions. Assumptions के साथ साथ एक और चीज़ इसके साथ आती है, वो है exceptions. एक्सेप्शंस का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो इसके बिल्कुल ही अपोजिट होती है, इसके बिल्कुल विपरीत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ देख रहे हैं एमयू का कर्व ऊपर से लेके नीचे जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इन द केस ऑफ एक्सेप्शंस एमयू कर्व गोज अपवर्ड्स नॉट डाउनवर्ड्स। ओके, सो दिस इज अ मेजर एक्सेप्शन, मेजर अपोजिट साइड ऑफ दिस लॉ विच आर कॉल्ड एज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो इसके बिल्कुल उलट होती है, इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। आप देखेंगे एग्जाम्पल्स तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है हॉबीज। अभी डीएमयू मार्जिनल यूटिलिटी का मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फंडा क्या है, जितना आप कमोडिटी कंज्यूम करोगे उतना ही आपका एमयू क्या होते जाएगा, कम होता जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेप्शंस की। सो हॉबीज जैसे कि एक्सेप्शंस में पहला पॉइंट दिया है, हॉबीज़ के बारे में कहा जाता है फॉर एग्जांपल अगर किसी को म्यूजिक सुनने की हॉबी है या रीडिंग की हॉबी है तो उसको आप कितने भी गाने डाउनलोड करके दो, कितने भी बुक्स ला के दो, वो पढ़ते ही जाएगा, गाने सुनते ही जाएगा। तो उसकी एमयू जो होता है हॉबीज़ का वो कभी कम नहीं होता है। एमयू ऑफ हॉबीज़ ऑलवेज इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस। यहाँ पे वही एग्जाम्पल दिया है, वेरियस टाइप्स ऑफ हॉबीज़ लाइक स्टैम्प कलेक्शन, कॉइन्स, पेंटिंग्स, म्यूजिक, रीडिंग एक्सेट्रा. The law does not hold true because every additional increase in stock gives more pleasure. सेकेंड, माइजर। माइजर का मतलब अगर आसानी से उसका मतलब निकाला तो होता है कंजूस आदमी, कंजूस हम लोग बोलते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में। तो माइजर वो होते हैं जिनके लिए पैसे की वैल्यू बहुत होती है और वो ऐसा सोचते हैं कि मैं जितना पैसा बचाऊंगा उतनी पैसे की एमयू मेरे लिए बढ़ेगी, उतना सेटिस्फेक्शन उनको ज़्यादा मिलता है। सो ऑल माइजर्स दे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उनके लिए बहुत बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती है। थर्ड, एडिक्शंस। एडिक्शंस का मतलब होता है वही एडिक्शंस जो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सिगरेट का एडिक्शन है, किसी को लिकर का एडिक्शन है, तो ये सारे एडिक्शंस की जो चीज़ें होती है उनके लिए एमयू कोई मायने नहीं रखता है, उनके लिए एमयू बढ़ते ही जाता है। सो यहाँ पे भी वही लिखा है दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑल एडिक्शंस, हाउएवर दिस वायलेट्स द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी। यहाँ पे वो आदमी रैशनल नहीं होता है, जब वो एडिक्शन के अंदर होता है तो ही इज़ नॉट अ रैशनल कंज्यूमर, उसका दिमाग कहीं और चलता होता है, तो वो एक जो अपना एजम्पशन था वो यहाँ पे उसका वायलेट हो जाता है। सो एडिक्शंस के अंदर आदमी का एमयू कभी कम नहीं होता है। फोर्थ, पावर। अभी पावर आप दो तीन तरह का बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की तारीख में पॉलिटिशियंस का जो पावर होता है उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूँ। ओके, सो उनको पावर जितना बढ़े, वो जैसे जैसे एक आगे आगे बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले अगर वो कार्य करता था, आगे चल के वो नेता बना, ऊपर जाके और मिनिस्टर बन गया, तो ऐसा करने से उनको क्या मिलता है, एक पावर मिलता है और उनको लगता है कि मैंने कुछ ज़िंदगी में पाया है। और उनके लिए वो एमयू जो होता है, पावर का एमयू, वो हमेशा बढ़ते रहता है, कम नहीं होता है। ठीक है। लास्ट इज मनी। मनी का एमयू जो होता है वो सबके लिए, वो अगर वो नॉर्मल इंसान क्यों ना हो, आप और मैं क्यों ना हो, या फिर मुकेश अंबानी क्यों ना हो, सबके लिए एमयू ऑफ मनी गोज ऑन इंक्रीजिंग। कोई भी आदमी ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे लिए इतना, मैंने इतना कमाया बस है मेरे लिए, नहीं। Everybody wants to grow up in the life, so MU of money never decreases, it always goes on increases. Okay, यहाँ पे वही लिखा है MU of money is more to a poor person than to a rich person. लेकिन जैसे मैंने बताया कोई भी आदमी कभी भी जाके कोई मकाम पे जाके रुकता नहीं है, उसको जितना पैसा कमाया उसको कमी लगेगा। तो MU of money never decreases, it always increases. उसके बाद ये सारा जो हम लोग ने अभी देखा राइट फ्रॉम द लॉ ऑफ DMU से लेके यहाँ से लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका क्वेश्चन आपको आएगा दो तरह से। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शंस, या फिर सेम क्वेश्चन आपको आएगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एजम्पशंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, आपको 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, 8 मार्क के लिए। पिछले साल तक ये 8 मार्क के लिए आता था। अभी लेट्स सी, अभी नया सिलेबस के हिसाब से नया मार्किंग स्कीम अभी तक बाहर आया नहीं है, बट लेट अस एक्सपेक्ट कि ये 8 मार्क से 10 मार्क के बीच में आ सकता है। और अगर ये 8 मार्क के लिए आता है तो आपको आंसर को बाइफरकेट करना पड़ेगा। 4 मार्क आपको मिलेगा लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ,
टेबल एंड डायग्राम। और अगर जो भी पूछा है, अगर एक्सेप्शन पूछा है तो आपको मिनिमम 4 एक्सेप्शन लिखना है, और अगर एजम्पशन पूछा है तो आपको मिनिमम 4 एजम्पशन लिखना है। इतने सारे एजम्पशन एक्सेप्शन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू 4 फ्रॉम ईच सेक्शन। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर के एंड में भी आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, आंसर इन डिटेल, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विथ एक्सेप्शंस यहाँ पूछा गया है, बट विथ एक्सेप्शंस की जगह पे ये एक्सेप्शंस को अगर निकाल देते हैं तो इसकी जगह पे एजम्पशंस भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आ सकता है। अग्री डिसएग्री में आ सकता है, घुमा फिरा के पूछते हैं। अग्री डिसएग्री में कैसा पूछेंगे कि देर आर नो एजम्पशंस टू लॉ ऑफ डीएमयू, तो आप लिख सकते हो आई डिसएग्री, देर आर मेनी एजम्पशंस टू लॉ ऑफ डीएमयू, कोई भी 4 एजम्पशन लिखो आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू हेल्प यू इन मैनी वेज, फॉर 4 मार्क्स ऑल्सो, फॉर अग्री डिसएग्री ऑल्सो, गिव रीजन ऑल्सो, इन मैनी वेज। और सबसे बड़ी बात, आपने जो पहले टी और एमयू किया होगा, अगर आपको ये रिलेशनशिप बिटवीन टी और एमयू समझ में आ गया होगा तो ये लॉ ऑफ डीएमयू आपको बहुत बिल्कुल ईजी होने वाला है। सो लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ने से पहले आप प्लीज़ उसको लॉ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टी और एमयू को एक बार देख लेना, पहले वीडियो में मैंने दिखाया आपको, और अभी हम लोग ने बात किया लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में। उसके बाद लॉ ऑफ डीएमयू जैसे ही खत्म होता है उसके बाद एक क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ करके एक छोटा सा एक पॉइंट्स वाला सिस्टम है, बट वहाँ पे आपको इतना कुछ बेसिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों को आप ऑप्शन में डाल सकते हो, क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ और सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। ये ज़्यादा कई बार पूछा नहीं जाता है, बाई चांस कभी आ गया तो 4 मार्क्स के लिए आ सकता है और ऑप्शन में आप उसको डाल सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि उसको आप करो ही मत, आपको जब भी टाइम मिले लास्ट में एक बार खाली देख लेना, इसमें वही सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो हम लोग ने ऊपर डिस्कस किए, और उसके बारे में लिखा गया है कि क्या इस लॉ के क्रिटिसिज्म्स है और क्या इस लॉ का सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस, तो वही उसके बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ये भी एक छोटा सा एक शॉर्ट नोट जैसा है, बट वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन थिंग इसका मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले वीडियो में भी बताया है। इस चैप्टर का अगर इंपॉर्टेंस हम लोग देखना चाहेंगे जस्ट एक रिकैप के जरिए, तो सेकंड चैप्टर यूटिलिटी ऑफ एनालिसिस के अंदर मेन थिंग, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में छोटे क्वेश्चंस है 4 मार्क्स के, वो आपको सबसे पहला है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी का अलग नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। इसके अंदर करीब 10 पॉइंट है, बट जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, यू कैन डू एनी 4 to 5 पॉइंट्स थरोली एंड कीप द रेस्ट इन द ऑप्शन। आपको 4 से 5 पॉइंट बराबर करना है, पहले सारे के सारे पढ़ लो, उसमें से आपको जो ईजी लगे और उसमें से 4 से 5 उठा के आप कर सकते हो। हर एक में आप खुद का एग्जाम्पल लिख सकते हो, यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिव एग्जाम्पल्स। उसके बाद है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, अगेन 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसके अंदर 6 टाइप की यूटिलिटी दिया है, वो भी उसमें से भी आपको 4 या 5 ही करना है। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिकल आंसर, आप उसमें खुद का क्रिएटिव एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हो। उसके बाद इस चैप्टर का मेन पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। एंड उसके बाद लास्ट में है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पूरा लंबा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एक्सेप्शंस और एजम्पशन के साथ। और एक छोटा सा एक डिस्टिंग्विश आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन टी यू एंड एम यू। ये डिस्टिंग्विश पिछले साल तक इकोनॉमिक्स में 2 मार्क्स के हुआ करते थे, इस साल भी एक्सपेक्टेशन है कि 2 मार्क्स के ही आएंगे। 2 मार्क्स के अगर डिस्टिंग्विश पूछे जाते हैं तो उसके लिए आप मिनिमम 4 पॉइंट लिख सकते हो, मोर देन इनफ है, ओके। उसके अंदर आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, बिकॉज इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम टेबल्स एंड डायग्राम यूज करने हैं। आपको ऊपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी लिखा रहेगा कि यूज और ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम्स वेरेवर नेसेसरी। तो कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स के अंदर आपको टेबल्स डायग्राम्स वगैरह परफेक्टली करना है, और ध्यान से उसको एक बार समझ लो। खुद का फिगर्स भी डाल सकते हो, बट जितना हो सके उतना टेक्स्ट बुक में जो फिगर्स दिया है उसको याद रखो, तो आपको ईजी पड़ेगा, तो आप आसानी से उसको लिख पाओगे। और जितना हो सके उतना घर पे टेबल और डायग्राम पेंसिल से पेपर पे प्रैक्टिस करते रहो, तो आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। ऐसा देखने से समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन जब ड्रॉ करोगे तब आपको पता चलेगा कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर नंबर 2 का हमारा सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको वीडियो में भेजा है, तो उसके लिए आप दोनों पार्ट को एक कॉम्बिनेशन में देखिए और आपका सेकंड चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। और कोई भी डिफिकल्टीज है कमेंट्स में मुझे शेयर कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। टिल देन हैप्पी लर्निंग।